Okay, so the question says यहाँ पे the general question, show that given differential equation is homogeneous and solve. So first it is x squared plus xy dy is equal to x squared plus y squared dx. ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड ओवर एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स वाई. ठीक है, नाउ वी विल मेक द कंपैरिजन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड ओवर एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स वाई. मतलब वी विल टेक दिस f of tx comma ty is equal to tx squared tx squared. तो जहाँ पे x था I have replaced it by tx, जहाँ पे y था I have replaced it by ty. What we are trying to show is we are trying to show that fx comma y is t raised to n, sorry, tx comma ty is this. If we get this, then we will say it is a homogeneous differential equation of degree n. So this is t squared x squared plus t squared y squared, t squared x squared plus t squared xy. ठीक है, t squared कॉमन निकाल दो, x squared प्लस वाई स्क्वायर्ड, t squared कॉमन निकाल दिया, x squared प्लस एक्स वाई. स्ट्राइक दिस ऑफ. तो f of tx comma ty is t raised to 0 f of x comma y. एक बार चेक कर लेते हैं. t squared x squared, t squared y squared, t squared x squared, t squared xy. We took t squared common, cancel कर दिया, and this is so f is a homogeneous function of degree 0. That means given differential equation is homogeneous. तो फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया. ठीक है, लिखना है बिकॉज सेकेंड पार्ट में वी विल टेक y इज इक्वल टू वी एक्स. यू हैव योर टेस्ट पेपर राइट? हाँ, तो उसमें से ही सॉल्व कर लो. Now for solving homogeneous, what we are going to do, let y is equal to vx, right? तो dy by dx, product rule, v plus x dv by dx, product rule अप्लाई किया, u into v rule. तो the differential equation इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे this part and y के जगह पे vx. So v plus x dv by dx is equal to x squared plus v squared x squared over x squared plus x into vx. Now just check.
एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस वी, तो वी कैन कैंसिल दी एक्स स्क्वायर वाला पार्ट. नाउ एक्स डी वी बाई डी एक्स is 1 plus v squared over 1 plus v minus v. So I will multiply this on this side. I'll give you time बेटा, सिर्फ इसको थोड़ा सा ठीक है. तो x dv by dx is 1 plus v squared minus v squared. नोट कर लो पहले आप. But shall I erase the left hand side? This goes on the other side. यहाँ पर क्या होगा, v squared minus v squared cancel हो गया and I'm left with 1 minus v over 1 plus v. तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया. x dv by dx is equal to 1 minus v over 1 plus v. वेरिएबल सेपरेबल. I'll move this on the other side और इसको उस तरफ ले जाता है. So it is 1 plus v over 1 minus v dv is equal to dx upon x. 1 minus v, I don't like this. We will take it on the other side. तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको पूरा उस तरफ ले जाते हैं तो 0 is equal to dx over x minus 1 plus v over 1 minus v dv. अब what I'll do is I'll take this out, या ये माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके v माइनस 1 कर देंगे एंड इंटीग्रेट भी कर देते हैं एक ही स्टेप में. सो वी हैव 0 इज इक्वल टू dx ओवर x प्लस इंटीग्रेशन v प्लस 1 v माइनस 1 dv. ठीक है यहाँ तक. अब ठीक से लिख देते हैं. dx ओवर x प्लस इंटीग्रेशन v माइनस 1 प्लस 2. वॉट आई हैव डन इज, ये जो 1 है इसके जगह पे आई एम राइटिंग 2 माइनस 1. 2 minus 1 gives me 1, minus 1 plus 2. That means integration dx over x plus integration v minus 1 over v minus 1 dv. स्प्लिट कर दिया इसको
plus 2 times integration 1 over v minus 1. This part gets cancelled. So it is integration dx over x plus integration 1 dv plus 2 times 1 over v minus 1. Right? Now we can integrate. That gives me log of mod x plus this will be v 2 times log of v minus 1, which is equal to c. तो the key thing was I took, ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, होमोजीनियस से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में भी कन्वर्टेड, देन we took the v wala part on one side, dx on the other, but I had 1 minus v, so I took this on the other side and got it in v minus 1 form में. बाकी का फिर after this resubstituting the values, log of mod x, इसको I'll take it at the top, plus y upon x plus, now when this goes at the top, this becomes log of v minus 1 the whole square is equal to c. And v के जगह पे I will stick to the mod thing so that I can multiply this here. So this is y over x minus 1 square. Log a plus log b, that is log of a into b. So log of mod of x into y minus x over x the whole square. So this is x squared, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. आई गेट लॉग ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है. पहले इतना नोट कर लो. Now if we take x as positive, क्योंकि y माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो x को भी आप पॉजिटिव ले लोगे तो आपको मिल जाएगा log of y माइनस एक्स द होल स्क्वायर we can leave it here. नहीं तो उसको उस साइड लेके जाओ, c माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है. फिर उसको एलसीएम निकालो, फिर ये लॉग हटा के ई रेज टू करो. नहीं, आई कैन लीव इट हियर. तो शैल आई रेज द लेफ्ट साइड, लिख रहे हो, ठीक है. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चंस हियर आर एक्चुअली लेंदी.
सेकेंड वन इज ट्रिवियल, आप कर लोगे डायरेक्टली. वील ट्राई द थर्ड वन. Sorry, it is x minus y dy minus x plus y dx is equal to 0. वैसे ही है, पहले आपको प्रूफ करना है दिस इज homogeneous. So I'll leave that to you. Now you'll be able to do it. First take this on this side. x minus y dy is equal to x plus y dx. ये dy यहाँ पे आ जाएगा. dy by dx will become x plus y over x minus y. As we can see यहाँ पर this will be f of tx comma ty if you take. So this will be tx plus ty upon tx minus ty, tt common, so it will be t raised to 0 fx comma y. तो वो जो प्रूव करना है ना होमोजीनियस है, दैट आई लीव इट फॉर यू. वी विल स्टार्ट डायरेक्टली. आई जस्ट मेंशन this is a homogeneous differential equation. ठीक है बेटा, स्टार्ट करें. तो सब्सटीट्यूशन क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स. होमोजीनियस से वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने के लिए लेट y इज इक्वल टू वी एक्स. तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. वी विल इंसर्ट दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज x प्लस y के जगह पे वी एक्स आ गया, दूसरे इसके जगह पे भी वी एक्स आ गया. So I will take x out, 1 plus v, x out 1 minus v. So we have v plus x dv by dx is 1 plus v over 1 minus v. Take the v thing on the other side. X dv by dx becomes 1 plus v over 1 minus v minus v. LCM निकालेंगे, 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 माइनस वी, 1 माइनस वी. ठीक है, अब तक सारे स्टेप्स कहीं कुछ. सो एक्स डी वी बाई डी एक्स बिकम्स 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर. x dv by dx is 1 plus v square over 1 minus v. We have converted a homogeneous differential equation into variable separable form. आगे proceed कर सकते हैं. नोट कर लो. You can actually see it and वैसे ही है. हाँ, but then if they specify कि proof करना है तो do it please. So the next part is we take the v wala terms on one side, left hand side, dx on the other. I will get 1 minus v dv over 1 plus v square is equal to dx over x. I can integrate it now, but at the same time I don't want this 1 minus v thing.
आई कैन टेक इट ऑन द अदर साइड, ठीक है, इसको उस साइड, या छोड़ दो ऐसे भी, इंटीग्रेट कर देते हैं. सो इफ वी इंटीग्रेट, देखो आई कैन स्प्लिट दिस इनटू टू पार्ट्स. इट इज 1/1 प्लस वी स्क्वायर्ड डी वी माइनस v/1 plus v squared dv, which is equal to integration dx over x. This is tan inverse, straightforward. यहाँ पे I need to prove that the numerator is the derivative of the denominator. Directly हो जाएगा. For that purpose I need a half to balance it. So I have 1/1 plus v squared dv minus half d by dv 1 plus v squared. Now this is tan inverse directly, tan inverse of v minus half log of 1 plus ऐसे ही आ जाओ पूरा यहाँ से, हाँ आराम से, डोंट हर्ट योरसेल्फ. log of 1 plus v square is equal to log of mod x. एंड ऑब्वियसली प्लस सी. अभी तक जो जो सॉल्व किया उसमें प्लस सी है ना, देखते रहना. विदाउट दैट इट विल गो रॉन्ग. विल रीसब्स्टिट्यूट tan inverse y upon x minus half log of y by x हो गया, so this is x squared plus y squared over x squared. This half we can take it ऊपर, so this will become log of ऐसे कर देता is equal to log of x plus c. Take x as positive. tan inverse of y upon x, ये log मैं उस साइड ले जा रहा हूँ. This is equal to log of x. Now if I solve, this is x squared plus y squared over x squared. The square root will cancel the squared part. So it is log of x squared plus y squared. क्योंकि ये प्लस था, यहाँ पे देखो log x प्लस, कैन आई मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक है नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं. tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ, देखो x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड into x. This x and the x can be cancelled. So I have tan inverse of y by x is equal to log of root of x squared plus y squared plus c. Finally, if you want, you can write y by x, tan को उस साइड लेके जाके होल, बट यहाँ पे छोड़ दो, कोई ऐसा ये नहीं है. Okay. Shall we try the 7th question from the NCERT? दोनों साइड हो गया बेटा, पूरा इरेज कर दूं. x cos y by x plus y
sin y by x, the whole thing into y dx is equal to y sin y by x minus x cos y by x dy. This is the question. First I want to write it in dy by dx form. First thing, तो dy यहाँ पर है, dx इस साइड लेकर आएंगे, तो ये जो dy का पूरा जो टर्म है I will take it on the other side. तो in other words dy by dx is, ठीक है, पहले ये पूरा पार्ट लिखता हूँ, x cos y by x plus y sin y by x अपॉन, अब ये पार्ट पूरा, दिस y I have here. अब ये जो dy का जो पूरा कोएफिशिएंट था ना, ये जो पूरा, इसको दूसरी साइड ले जा रहे हैं, y sin y by x माइनस x cos, और ये ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, you want to prove that this is a homogeneous function. y by x जहाँ जहाँ मिल रहा है, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं. अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, dy by dx, x cos y by x था, यहाँ पर x गया तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस y by x साइन ऑफ y by x, यहाँ पे भी x डिवाइड किया आपने, y by x साइन x ओवर x, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये तो वैसे का वैसा है. सो इफ यू ऑब्जर्व नाउ आई कैन गेट रिड ऑफ दिस पार्ट, ऐसे हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, एवरीवेयर इट इज y by x. होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, दिस थिंग वी विल टेक, लेट, अगर ty ले लोगे, सो ty tt विल गेट कैंसल्ड, यहाँ पे भी कैंसिल, सब जगह पे, बिकॉज इफ इट इज y upon x वी कैन जस्ट कैंसिल इट, द डिग्री इज गोइंग टू बी 0. सो दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. फॉर दैट वी टेक लेट y इज इक्वल टू वी एक्स. थोड़ा सा यहाँ पे एक अरेंजमेंट करते हैं, y अपॉन एक्स वी हो गया, बट जब आप वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हो तो इसमें ही करना है, यहाँ पे मत करो कुछ भी. तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. लेफ्ट हैंड साइड पे आई विल इन रिप्लेस द लेफ्ट हैंड साइड बाय दिस, राइट हैंड साइड पे y बाय एक्स को v कर देंगे. आई थॉट वी विल डू अ लिटिल बिट ऑफ वो लीनियर वाला पार्ट भी, बट जाने दो, उसके लिए सेपरेट ये कर देंगे. आज इसको अच्छे से कर लो. आई विल ट्राई टू स्क्वीज इन अ लेक्चर फॉर ऑन सैटरडे. दशहरा है तो क्या हो गया, आई एम वर्किंग, तो उस दिन कर देंगे, तो आपका लीनियर वाला पार्ट भी हो जाएगा और आप उसको रेफर भी कर सकते हो. सो वी हैव v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स is y by x, I'll take it as v, this is cos v plus v sin v divided by again v sin v minus cos v, and don't forget this part.
ठीक है, सेम स्टेप्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स, मैं ये v ना इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई गेट v cos v प्लस वी स्क्वायर्ड साइन v, जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा है। दिस v साइन v माइनस कॉस v, ये वाला जो v था उस साइड गया, तो x डी वी बाई डी एक्स इज v cos v plus v squared sin v. This whole thing goes on the other side. This becomes minus v squared sin v and plus v cos v. ये पूरा वहाँ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस वी स्क्वायर्ड साइन वी प्लस वी कॉस वी, दिस इज v साइन v माइनस कॉस वी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। देख लो सच में हो रहा है ना। So x dv by dx is 2v cos v d sin v minus cos v। ठीक है, अब तक यहाँ तक वेरिएबल सेपरेबल है, 2 को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी इस पूरे पार्ट को उस साइड ले जाते हैं। तो v sin v माइनस cos v अपॉन v cos v dv is equal to 2 dx over x, integrating both sides. Now when I look at the denominator, ये ऐसा कुछ डिज़ाइन लग रही है उसका। When I look at the denominator, I am tempted to apply u into v rule. Check करो, d by dv of v cos v, v derivative this part, so v इंटू कॉस v का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन v, और फिर cos v and derivative of this is 1, so I am getting minus v sin v plus cos v। पहले नोट कर लो so that I'll have to erase some part। ठीक है, I can even separate it out and try it, अगर ये नहीं अप्लाई करना है तो। मतलब आप इसको अगर स्प्लिट कर दोगे तो ये 1/v हो जा रहा है और यहाँ पे tan v हो जा रहा है, और वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड व्हाट अबाउट द अदर रूल, इज दिस गोइंग टू वर्क? चेक करो, होना चाहिए ना। व्हाट आई कैन डू इज आई एम जस्ट आस्किंग। एक तो वो है कि आई सेपरेटेड एंड देन कैंसिल tan v हो गया log of sec v एंड दिस इज 1/v log v एंड ये, बट ऐसा हो सकता है क्या ये? इफ आई चेक व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, v का डेरिवेटिव 1, so I got cos v and this. The only thing is the sign. I flip it. हाँ, वो क्या कर सकता है, पूरा ये टर्म को उधर लेके चले जाता। तो then this will become as per our requirement cos v minus this, so I'll get it together. दो मेथड्स है, यहाँ पर से हाईलाइट करते हैं, we'll use two methods, ये स्टार से, तो स्टार याद रखो, दो मेथड डाल देंगे।
So in this case, if I'm using the method here, what I can do is I can take the minus sign out, I can take the whole thing on the other side. So I get cos v minus v sin v upon v cos v dv plus 2 times dx upon x is 0. ऐसे. तो if I use this d by dv v cos v is 0. So numerator is the derivative of the denominator log of v cos v plus 2 times log of mod of x is log c. So this is log of, मल्टीप्लाई कर तो ये स्क्वायर हो गया. बिफोर टेकिंग दिस एट द टॉप आई कैनॉट अप्लाई लॉग ए प्लस लॉग बी वाला कॉन्सेप्ट. सो लॉग ऑफ v इंटू कॉस v इंटू एक्स स्क्वायर इज लॉग c. पहले तो लॉग लॉग हटा दिया, अब इसको रिप्लेस कर दिया y अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस इंटू वाई अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर. यहाँ पर सिर्फ एक x बचेगा. तो आई एम गेटिंग एक्स वाई इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी. ये इस मेथड से. ठीक है. ठीक है. अब दूसरे मेथड से करते तो आंसर वही आ रहा है. देखो उससे भी आंसर वही आएगा. यहाँ से अगर मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, शैल आई यूज दिस पार्ट सो दैट दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट. आंसर यही आना चाहिए. इसको अगर आप स्प्लिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v and v gets cancelled, tan v dv माइनस इंटीग्रेशन कॉस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx अपॉन x. tan का इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ सेक माइनस लॉग ऑफ v इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ mod ऑफ x प्लस लॉग c. So when we take this together, this is log of sec v over v because there is subtraction. और यहाँ पर आप चाहे तो इन दोनों को भी साथ में ले लो. तो दिस इज log of x squared into c. log log gone, रिप्लेस भी कर दो. sec y by x over y by x is equal to x squared into c. पूरा y by x I'll take on that side, so it is sec y upon x is equal to y upon x into x squared into c. कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे मिल गया sec y upon x is equal to xy into c. ठीक है. थोड़ा बहुत इधर उधर है. अगर आप इसको उस साइड ले जाओगे, देखो sec goes on the other side, or this is 1 by cos goes on that side. I have 1 upon c is equal to xy into cos y by x. 1 upon c, अगर इसको आप c1 बोल देते तो this would become c. Anyways, 1 upon c1. The same answer by either of the methods. ठीक है. So far we have solved questions which are based on general solution only. अभी तक हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकाला.
ठीक है, नोट कर लो बेटा ये भी। अब एक 10th वाला क्वेश्चन कर ले, लास्ट वन फॉर टुडे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वी नो, वी हैव ट्राइड इट इन वेरिएबल सेपरेबल। पहले जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसको आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट वी इंसर्ट द वैल्यूज and get the value of the constant. 10th one, this is 1 plus e raised to x over y dx plus e raised to x over y 1 minus x over y dy is equal to 0. ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ dx by dy. आई विल टेक दिस होल थिंग ऑन दिस साइड. व्हेन आई टेक इट ऑन दिस साइड, मैं इसका जो ऑर्डर है 1 minus xy, आई विल मेक इट x upon y, आई विल जस्ट चेंज इट. सो दिस इज 1 plus e raised to x upon y dx plus e raised to is equal to x upon y minus 1 e raised to x by y dy. मतलब इस पूरे पार्ट को हमने उस साइड ले लिया. नाउ आई टेक dy ऑन दिस साइड, आई टेक दिस थिंग ऑन दैट साइड. इज इट ओके? होमोजीनियस प्रूफ करना है, आई बिलीव यू कैन डू दैट. tx ty लेकर कर सकते हैं. सब्सटीट्यूशन क्या करूं, x dx by dy है. So far we were using y is equal to vx. Now we will use let x is equal to vy. That will give you x upon y is equal to v. U into v rule. dx by dy is equal to v. ठीक है, यहाँ पर तो ये हो गया प्लस y इंटू डी वी बाई डी वाई. वहाँ पर क्या कर रहे थे, y इज इक्वल टू वी एक्स था, सो यू अप्लाइड द रूल डी वाई बाई डी एक्स इज v प्लस x डी वी बाई डी एक्स, बिकॉज वी वर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. हियर वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y. इट इज अगेन u इंटू वी रूल. शैल आई सब्सटीट्यूटेड v प्लस y dv by dy is equal to v minus 1 over 1 plus e raised to v into e raised to v. ठीक है अभी तक. then y dv by dy we will take multiply this inside v into e raised to v minus e raised to v minus v. So y dv by dy is equal to v into e raised to v इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस v into e raised to v. तो these two get cancelled. When something gets cancelled थोड़ा सा रिलीफ मिलता है. It seems like we are on the right track. So y dv by dy is equal to, now what I will do is I will take the negative sign out, minus, so it is v plus e raised to v over 1 plus e raised to v. I'll leave the minus sign on that side. Just ये वाले पार्ट को यहाँ लेके आएंगे. So it is 1 plus e raised to v dv is equal to minus dy over y. इंटीग्रेट कर दो. If you look at the denominator,
v का डेरिवेटिव 1 होता है, e रेज टू v का e रेज टू v होता है. सो आई हैव d बाई डी वी प्लस इंटीग्रेशन dy ओवर y इज इक्वल टू 0. दोनों साइड पे log आने वाला है तो कांस्टेंट भी log के टर्म्स में ले लेंगे. सो वी हैव log ऑफ v प्लस e रेज टू v प्लस log ऑफ y is equal to log of mod of c. So log of v plus e raised to v into y is equal to log of mod of c. log gone. At the same time v के जगह पे we will write x upon y. गलती से y by x मत लिख देना. तो x upon y plus e raised to x upon y मल्टीप्लाइड बाय वाई इज सी. इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो x प्लस वाई इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन वाई. सो माई आंसर इज ज्ञान did not go for lunch. It is about 4. This is what I got. आराम से. This is the solution. तो I think now you will be able to apply. बाकी questions आप try करके देखो. कहीं पे कुछ problem आती है तो we can discuss and we will also solve the particular solution वाला part. Next lecture जो record करेंगे ना वो उसका होगा linear वाले part का. तो we'll do that linear वाला part का टाइम. ठीक है, चलो.